جتنے بھی مختار کے سپاہی تھی کوئی بتانے کو تیار نہیں اس کا جرم کیا ہے۔ جب کسی نے بتایا نہیں تو مختار نے کہا سپاہیوں بتاؤ کہ اس کا جرم کیا ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے، اسی سے اس کا جرم پوچھ لے۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا اس نے وہ جرم کیا ہے کہ اپنی زبان سے ہم وہ جرم دہرا نہیں سکتے۔ کہا مختار اگر جرم پوچھنا ہے تو اسی مجرم سے پوچھ لو۔ مختار نے تلوار کو گردن پہ رکھا، کہا جلدی بتا تو نے کربلا میں کون سا جرم کیا تھا۔ کہا مختار نہیں بتاؤں گا۔ کہا جلدی بتا ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ کہتا مختار میں کربلا میں نیزے لے کے نہیں گیا تھا، بھالے لے کے نہیں گیا تھا، تلوار لے کے نہیں گیا تھا، پتھر لے کر کے نہیں گیا تھا۔ مختار کہتے پھر تیرا جرم کیا ہے، تو نے جرم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے مختار بس شام غریبا میں نے زینب کی چادر کو ہاتھ لگایا تھا۔ اے مختار رونے والوں، اسی زینب کی ہماری بے ردا زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے والوں، یقیناً جس وقت آپ اس جگہ پیسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، نہ یہ وقت برباد ہوگا نہ یہ وقت ضائع ہوگا، اس لیے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے ہم ساری رات انتظار کر رہے ہیں کب علم برآمد ہوگا، کب ذوالجناح برآمد ہوگا، کب ہماریاں نکلیں گی اور ہم فاطمہ کو ان کے لاڈلے کا پرسہ دیں گے۔ یہ میں علم جب اتنی تاخیر ہو گئی تو میں نے 2 لمحے کے لیے اس لیے روکا کہ میرے ایک بھائی انجمن کے ممبر ہی میرے قریب آئے، انہوں نے کہا کہ آغاز اس سے کر دیجئے کہ جو ان بیویوں کے پردے کا محافظ ہے۔ آپ سے اتنا بڑا بیمار ہے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، دنیا میں سب سے آسان لفظ ہے کہ جب آپ کسی کو روتا ہوا دیکھیں تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس سے اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کیا ہوا۔ کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو بھی روتا ہوا دیکھیں اس کے قریب جا کر کے پوچھ سکتے ہیں بتاؤ بھائی کیا ہوا۔ لیکن ہائے غربت حسین، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ 2 جملے سناؤں گا، زیارت کر لینا۔ کتنا غریب تھا حسین۔ 3 جملے مولا عباس جب گھوڑے سے گرے ہیں، حسین کی زبان اقدس سے 3 جملے نکلے ہیں۔ پہلا جملہ ہی قیامت ہے، لیکن تیسرے جملے میں جو قیامت ہے نا، وہ جب یاد کریں گے حسین کے مرثیے کا تیسرا جملہ، یہ جتنے عزادار ہیں جب بھی جائیں گے آخری دن ہے رونے کے لیے آئے ہیں، سال بھر کے بعد جب پھر سے یہ دن آئے گا آپ یاد کریں گے اس جملے کو۔ حسین نے 3 جملے کہے تھے جب عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ پہلا جملہ حسین کے مرثیے کا، الان انکسر ظہری یا اخی، بھیا عباس تیری جدائی نے میری کمر توڑ دی بھیا۔ دوسرا جملہ سن لو حسین کا، وقلت حیلتی، بھیا عباس اب میرا کوئی مددگار نہیں ہے، اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ سر پیٹو گے سینہ پیٹو گے کیفیت کیا ہوگی۔ تیسرا جملہ جو حسین نے کہا ہے، حسین کمر کو تھام کے کہتے ہیں بھیا عباس
वत्ताना भी अदुवी, भैया आज के बाद तेरे दुश्मन मुझे ताना देंगे। ऐ हुसैन देख मैंने कैसे अब्बास के बाजुओं को ज़लब किया। जज़ाकल्लाह होने वालों, शहजादी आपका परसा कबूल फरमाए, शहजादी आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। आप अलम की जियारत कर लें, इसके साथ साथ जुलजनाह की भी जियारत कर लें। जुलजनाह जिसके सुमों से लिपट करके आराम से सुकून से आराम से जियारत कीजिएगा, रो रो के जियारत कीजिएगा, सोच सोच के जियारत कीजिएगा। क्या थी करबला जब ज़ैनब मदीने से चली थी, अब्बास सलामत थे, हुसैन सलामत थे, अकबर सलामत थे, लेकिन अब जब ज़ैनब पलट रही है, क्या गम होगा हो ज़ैनब के कलेजे में, क्या दर्द होगा ज़ैनब के कलेजे में। ये तसव्वुर रख करके जियारत करते रहिएगा। ये अभी आप जुलजनाह की जियारत करेंगे, आपको जब भी जुलजनाह का नाम आता है ना, मैं आप इतना बड़ा मजमा है, इतने बड़े मजमे से मैं कह रहा हूँ, यकीन करें कि जब भी मसाइब में जुलजनाह का नाम आता है याद आने चाहिए हुसैन, मगर कभी पहले हुसैन याद नहीं आते। पहले एक 4 साल की बच्ची याद आती है जो जुलजनाह के सुमों से लिपट के कह रही थी, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया। है मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को आप लोग जरा जरा सी जगह दे दें ताकि ये तबरुकात गुजर सकें। है मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा। अब आइए किसको पुरसा देना है, सुन सकेंगे आप? अगर सुन सकेंगे तो सुन लीजिए, इसी अलम से मुत्तसिल करके सुना देता हूं किसको पुरसा देना है। आपको याद है ना, शाम गरीबा एक बेटी अपने बाप से मिली थी, याद है ना आपको? एक बेटी अपने बाप से मिली थी, बेटी का नाम ज़ैनब है, बाप का नाम अली है। जो जहां है वहां से पुरसा देगा। बेटी का नाम ज़ैनब है, बाप का नाम अली है। बेटी ने कहा था बाबा अब मारे गए हो जब मेरे आनो मोहम्मद मारे गए, बाबा अब आए हो जब आनो मोहम्मद मारे गए, बाबा अब आए हो जब अकबर मारे गए, बाबा अब आए हो जब मेरा भैया हुसैन मारा गया, बाबा अब आए हो जब खैमों में आग लगा दी गई। उस वक्त अली ने अपनी बेटी ज़ैनब को दिलासा दे करके कहा था, बेटी ज़ैनब मैं हर उस मौके पर मौजूद था जब हर शहीद घोड़े से जमीन पे आया है। सुन सकते हो तो सुन लेना जो जहां है। क्या मैं हर शहीद के करीब मौजूद था जब भी कोई शहीद घोड़े की जीन से जमीन पे आया है, मैं उस शहीद के करीब गया था। क्या बेटी ज़ैनब मैंने हर शहीद को अपने कलेजे से लगाकर घोड़े की जीन से जमीन पे उतारा है। अगर सुन सकते हो मसाइब का जुमला तो सुन लेना। ज़ैनब तड़प के कहती है, बाबा जब हर शहीद को घोड़े की जीन से जमीन तक पहुंचाया है तो बाबा बस इतना बता दो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको घोड़े की जीन से उतारने में हुई? इतना कहना था। अली ने कहा, बेटी ज़ैनब मुझे इतनी तकलीफ हुसैन को सवारी से उतारने में नहीं हुई, अकबर को सवारी से उतारने में नहीं हुई, कासिम को सवारी से उतारने में नहीं हुई। कहा बाबा क्यों? कहा इसलिए कि जब ये सब सवार घोड़े की जमीन से जमीन पे आ रहे थे तो इन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे गले के अंदर डाल दिए, लेकिन ज़ैनब जब तेरा अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पे आया है, हाथ सलामत नहीं थे। करा दीजिए जियारत, करा दीजिए। एक जुमला इस दीनी में पढ़ दूंगा, कर लीजिए जियारत, होते हुए कर लीजिएगा, रोते हुए कीजिएगा।
अच्छा इस हमारी की तरफ देखते रहिए, किसकी हमारी नजर आ रही है आपको? अली की बेटी ज़ैनब की हमारी। बस ये वाकया सुन लीजिए, जो जहां है, जहां तक आवाज जा रही है मेरी, जो जहां खड़ा है वहां से पुरसा देगा। ये मोबाइल लाइव चल रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप पुरसा देने में मसरूफ रहें। रोने की कोशिश कीजिएगा, जो अगले साल जिंदा रहेगा वो रोएगा। रोने की कोशिश कीजिएगा पुरसा देने के लिए। मुख्तार सकफी की बारगाह में एक मलून गिरफ्तार करके लाया गया। जितने भी मुख्तार के सिपाही थी, कोई बताने को तैयार नहीं इसका जुर्म क्या है। जब किसी ने बताया नहीं तो मुख्तार ने कहा, सिपाहियों बताओ कि इसका जुर्म क्या है। सिपाहियों ने कहा, हम बता नहीं सकते, इसी से इसका जुर्म पूछ ले। कहा बताओ तो सही। कहा इसने वो जुर्म किया है कि अपनी जबान से हम वो जुर्म दोहरा नहीं सकते। कहा मुख्तार अगर जुर्म पूछना है तो इसी मुजरिम से पूछ लो। मुख्तार ने तलवार को गर्दन पे रखा। कहा जल्दी बता, तूने करबला में कौन सा जुर्म किया था? कहा मुख्तार नहीं बताऊंगा। कहा जल्दी बता वरना सर कलम कर दूंगा। कहता मुख्तार मैं करबला में नेज़े लेके नहीं गया था, भाले लेके नहीं गया था, तलवार लेके नहीं गया था, पत्थर लेकर के नहीं गया था। मुख्तार कहते फिर तेरा जुर्म क्या है, तूने जुर्म क्या किया था? वो कहता है मुख्तार बस शाम गरीबा मैंने ज़ैनब की चादर को हाथ लगाया था। ऐ मुख्तार रोने वालों, उसी ज़ैनब की हमारी बेरदा ज़ैनब। हाँ रोने वालों, पुरसा दे दिया आपने। बस आइए बीबी को और पुरसा दे देते हैं। इसी बहन, इसी ज़ैनब की बहन बीबी उम्मे कुलसूम, जगह दे दीजिए। तबरुकात आप लोगों से गुजारिश है, जरा सी जगह देते हुए। आओ रोने वालों, अब किसकी जियारत करोगे? गरीब ज़ैनब की गरीब बहन, जिसकी आरज़ू थी, तमन्ना थी रोने वालों, काश करबला में मेरी भी कोई औलाद होती, काश करबला में मेरी भी कोई औलाद होती। रोने वालों एक जुमला सुनो और हमारी की जियारत कर लो। कितनी मजलूमा थी बीबी। शबे आशूर हर बीबी अपने अपने लाडलों से कह रही थी कल सबसे पहले आका हुसैन पर जान कुर्बान करना है। लेकिन हुसैन ने देखा एक खैमे से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। हुसैन खैमे के करीब गए, अजीब मंजर देखा। गरीब बहन बीबी उम्मे कुलसूम तड़प तड़प के कह रही है, हाय मेरी कोई औलाद नहीं जिसने अपने भैया पर कुर्बान करूं। अब्बास करीब गए, बहन उम्मे कुलसूम कोई नहीं। अब्बास अपनी शहादत अपनी बहन उम्मे कुलसूम की जानिब। जज़ाकल्लाह रोने वालों, अब आइए जरा पर्दा गिरा दीजिए। अब मेरी तरफ चेहरा कर लीजिए आप 2 लम्हे के लिए। 2 अमारियों की जियारत कर ली आपने, अब खुद को और मगमूम कर लीजिए और रो लीजिए। अब खुद को और जरा मगमूम कर लीजिए। आइए अब किस बीबी की हमारी की जियारत करेंगे। वो बीबी कितनी मजलूमा थी जो करबला में 2 अमानतें लेकर के आई थी। ये मेरी माएँ, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, खुदा न करे हम में से किसी का भाई परदेश में मारा जाए, खुदा न करे हम में से किसी की छोटी बहन परदेश में मारी जाए। ये बीबी जिसकी हमारी की जियारत आप करेंगे, मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, मेरी तरफ देख ले 2 लम्हे के लिए। मैं इशारा कर दूंगा फिर आप जियारत कीजिएगा। मेरी तरफ 2 लम्हे के लिए देख लीजिए। ये 2 अमानतें लेकर के आई थी, एक अली असगर एक सकीना। अली असगर करबला में सो गए, सकीना शाम में सो गई। अली असगर करबला में सो गए, सकीना शाम में सो गई। 11 मुहर्रम को ये बीबी हुसैन के लाशे पर एक वादा करके चली है, मेरे वाली हो वारिस आपका लाशा बेगोरो कफन इस जलती हुई रेत पे पड़ा है। वादा करती हूँ
वादा करती हूँ जब तक सलामत रहूंगी कभी साये में ना बैठूंगी। वादा करती हूँ जब तक सलामत रहूंगी कभी साये में ना बैठूंगी। शाम तक साये में नहीं बैठी, रिहाई मिली साये में नहीं बैठी, करबला पहुंची साये में नहीं बैठी, काफिला मदीने आया साये में नहीं बैठी। एक दिन मदीने के कुछ खवातीन करीब आई आके कहती हैं, ऐ इमाम अपनी अम्मा से कह दीजिए कि वो साये में चली जाए। बीमार इमाम करीब आए, कहा अम्मा कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कि इमाम बन के हुक्म ना देना, बेटा बन के गुजारिश करना। जैसे ही ये जुमला कहा बीमार इमाम ने कहा मैं आपको अपनी इमामत का वास्ता देता हूँ, अम्मा साये में चली जाए। बीबी ने हाथों को बुलंद किया, ऐ मेरे अल्लाह एक इमाम से वादा करके आई हूँ, एक इमाम हुक्म दे रहा है, फैसला तेरे हाथ में है। फिजा आगे बढ़ी, नब्ज देखी, तड़प के कहा सज्जाद रबाब मर गई। हमारी यही 2 लम्हे के लिए हमारी यहीं रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए, यहीं रोक दीजिए 2 लम्हे के लिए, 2 लम्हे के लिए हमारी यहीं रोक दीजिए। आपको पता है बहुत तड़पेंगे आप, 2 लम्हे के लिए रोक दीजिएगा। ये सारी हमारी आ जाए फिर एक साथ हमारी लेकर के आगे बढ़िएगा। 2 लम्हे के लिए रुक जाइएगा। कितनी मजलूमा बीबी थी, गुस्ल देने के लिए बीबियां लेकर के चली। बेटे ने पूछा तो फिर अम्मा मेरी माँ को गुस्ल दे चुकी? कहा नहीं बेटा अभी नहीं। कहा फिर पूछा तो फिर अम्मा दे चुकी? कहा कि नहीं। कहा हाँ मेरे लाल गुस्ल तो नहीं दिया है, मगर कोई अमानत है जिसे भाभी उम्मे रबाब करबला से कूफा, कूफे से लेकर के शाम, शाम से लेकर के मदीने तक अपने कलेजे से लगा के लेके आई है। अब जो अमानत बीमार इमाम के हवाले की सैयद सज्जाद ने, वो अमानत खोली तो रोने वालों जानते हो क्या निकला? सकीना के कानों के गोशवारे, असगर के गहवारे की जली हुई खाक। मेरे लाल वो आखिरी हमारी 2 लम्हे के लिए रोकिएगा। ये हमारी आप जियारत कर लीजिए, जनाब फिजा की हमारी कितनी मजलूमा थी। आपको बता दूं एक जुमला सुन लीजिए, एक जुमला अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं मेरी तरफ देख लीजिए। आपको पता है जितने जख्म ज़ैनब ने खाए हैं उतने जख्म फिजा ने खाए हैं। हर जगह हर जगह हर जगह फिजा सिपर बन के खड़ी हुई थी ज़ैनब की। जब ताजियाने मारे जा रहे थे फिजा अपने हाथ आगे बढ़ा देती थी। क्या पहले ताजियाने फिजा को लगेंगे, बाद में अली की बेटी को लगेंगे? पहले 2 लम्हे के लिए भाई 2 लम्हे के लिए रोकिएगा। भाई ये हमारी सब कुछ है। ये सारे मोमिनीन जितने इतनी बड़ी तादाद में हैं ये इस वक्त मौजूद हैं, हर वक्त नहीं होंगे जितनी देर जुलूस होगा। हक बनता है कि इन तक मसाइल पहुंचा दिया जाए, पहुंचा देता हूं मैं। अब एक हमारी रह गई रोने वालों, बस एक वाकया सुन लो। कुछ इस हमारी के लिए कुछ पढ़ूंगा ही नहीं शन्ना भाई, एक वाकया पढ़ूंगा मसाइल तमाम कर दूंगा। सिर्फ एक वाकया कमर भाई, सिर्फ एक वाकया। एक बीबी जिसका नाम रुकैया था, एक शेर दिल का जिसका नाम मुस्लिम था। मुस्लिम के 2 बच्चे थे, 2 बच्चे करबला आए थे, 2 बच्चे कूफे में खो गए। खुदा की लानत हो हारिस मलून पर जिसने मुस्लिम के बच्चों को कत्ल किया। आपको पता है जब मुस्लिम के बच्चों को हारिस कत्ल कर रहा था तो मुस्लिम के बच्चों ने कहा हमें मालूम है तू हमारा कत्ल कर देगा, लेकिन हमारी मां को कैसे पता चलेगा कि उसके बच्चे मारे गए हैं। ये कहने के बाद वो कहते हैं बच्चे तड़प करके आए कातिल, जब हमारा कत्ल कर देना तो हमारी कमीसों को मदीने पहुंचा देना ताकि हमारी मां को पता चल जाए कि उसके बच्चे मारे गए। बच्चे मारे गए रोने वालों सुनना, बच्चे मारे गए। कुछ दिन गुजरे,
कुछ महीने गुजरे, कुछ साल गुजरा, निकाल दीजिए, मैं मसाइब पढ़ दूंगा, ये मसाइब सुन लेंगे, आप सब रुके रहिएगा, आप सब रुके रहिएगा, जियारत कर लीजिए। मैं ये वाकया पढ़ देता हूं, मेरी तरफ देखिएगा एक लम्हे के लिए, मेरी तरफ, ताकि मैं चाहता हूं आप देख लें एक लम्हे के लिए। बच्चे मारे गए, कमीज लेकर के एक शख्स मदीने चला, मदीने पहुंचा। अच्छा, पहचान ये बताई थी कि जब मदीने में मेरी कमीज को खोलेगा तो मेरे खुशबू से पहचान जाएगी हमारी माँ के उसके बच्चे आए हैं। वो शख्स मदीने पहुंचा, उसने संदूक से कुर्ते निकाले और महल्ले बनी हाशिम में फिरने लगा। अचानक एक घर का दरवाजा खुला, उससे एक बीबी ने निकली, वो तड़प के कहती है, लगता है मेरे बच्चे आए हैं, लगता है मेरे बच्चे आए हैं, लगता है मेरे बच्चे आए हैं, लगता है मेरे बच्चे आए हैं। लेकिन रोने वाला दिल पे उस माँ के क्या गुजरी होगी, बच्चे तो नहीं आए लेकिन बच्चों का खून आलूद कुर्ता नजर आया। माँ ने बच्चों को कुर्तों को लिया, घर के अंदर गई, रोने लगी। अब महल्ले बनी हाशिम की तमाम खवातीन को पता चला मुस्लिम के बच्चे मारे गए। सारी बीवियां चली कि चलो मुस्लिम की ज़ौजा को परसा दे दे। सारी बीवियां जनाबे मुस्लिम के घर पे आई। तारीख कहती है कि सारी बीवियों ने कहा, ऐ रुकैया अपने लाडलों के कमीज को हमारे दरमियान रख दो। सारी बीवियों ने, सारी बीवियां बैठ गई, उन कमीजों को उन बीवियों के दरमियान रखा गया। अभी जनाबे रुकैया ने कमीज रखा ही था कि अचानक कमीज उठाया, लेकर के चली, चाहा के संदूक में रखे कि तड़प के ज़ैनब ने कहा, बहन रुकैया हम सब तुम्हें पुरसा देने के लिए आए हैं, अरे हमारे दरमियान से इन बच्चों के खून आलूद कुर्ते हटा क्यों लिए। रुकैया ने तड़प के कहा, बहन उम्मे कुलसूम वो देखो असगर की मां आ रही है, हमारी निशानी हम तक आ गई, मगर हाय रबाब न गहवाला न असगर न बुल्ले न सकीरा।